A very warm good morning to everyone present here and welcome back बेटा. कैसे हो आप लोग? सब अच्छे हो? श्योर? सबके सब अच्छे हो? ओके, वेरी गुड. लास्ट वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किए थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज show that y equals to log 1 plus x minus 2x by 2 plus x greater than minus 1 is an increasing function of x throughout its domain. Means आपको ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है फॉर x इज ग्रेटर देन माइनस 1. ओके, क्या करना है बेटा? आपको ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है for x is greater than minus 1. Okay, without now firstly y dash and y dash equals to differentiate करेंगे इसको, then log 1 plus x को differentiate करेंगे. It means 1 by 1 plus x minus quotient rule बेटा, है ना. Then derivative of first function, it means 2. Second as it is 2 plus x minus first as it is derivative of second function, it means 1. Okay, and upon square of second function. Okay, without now 1 by 1 plus x minus 2 to the 4 plus 2x minus 2x upon 2 plus x whole square. 2x से 2x cancel. Then 1 by 1 plus x minus 4 by 2 plus x whole square. Okay. Now LCM बेटा, LCM लेंगे तो 1 plus x और 2 plus x whole square. इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 plus x whole square minus 4 into 1 plus x. Okay, now इसको सिंप्लीफाई करते हैं. Then a plus b whole square, it means a square plus b square plus 2ab, that means 4x minus 4 1 जा 4 minus 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे minus 4x and upon 1 plus x into 2 plus x whole square. Okay, now 4x से 4x, 4 से 4, it means x square by 1 plus x into 2 plus x square. Okay, and now for increasing, for now for y is increasing function, then y dash is greater than equals to 0. Okay, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता then y dash is greater than 0. अब इंक्रीजिंग है, it means y is greater than equals to 0. It means y dash is greater than equals to 0. Then y dash is x square by 1 plus x, 1 plus x into 2 plus x whole square is greater than equals to 0. It means ये जो भी आपके पास इसकी वैल्यू आए वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आए, तभी ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, है ना. तभी ये फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा. ओके, नाउ देखो बेटा, ये जो भी वैल्यू होगी हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि स्क्वायर वैल्यू है, स्क्वायर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है. अब ये भी जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव होगी क्योंकि 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर. इट मींस अब इस पूरे जो फंक्शन की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है? 1 प्लस एक्स पे डिपेंड कर रही है. और 1 प्लस एक्स नॉट इक्वल्स टू 0. अगर 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 हो गया, इट मींस नॉट डिफाइंड. देन 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0. ओके, ओके, तभी तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, है ना. देन 1 की साइड चेंज करेंगे, देन x इज ग्रेटर देन माइनस 1. कोई डाउट बेटा? Now question number 8, find the values of x for which y equals to x into x plus 2 whole square is an increasing function.
मींस आपको x की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिससे ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन. ओके ओके. नाउ देन फर्स्टली डिफरेंशिएट, देन सॉरी y इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले. देन y इक्वल्स टू x square minus 2x whole square. Okay, and now differentiate कर देते हैं. Then y dash equals to power, then 2 into x square minus 2x. Okay, and then x square को differentiate करेंगे, then 2x, और 2x को differentiate करेंगे minus 2. Okay बेटा. Now 2 into सेम यही लिख सकते हैं हम इसको. देन x इंटू एक्स माइनस 2. ओके, एंड 2 कॉमन ले लेते हैं. 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 और 2 2 जा 4. ओके, नाउ फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, सॉरी क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना. देन फॉर क्रिटिकल पॉइंट, for critical points, then y dash is greater than, sorry, y dash equals to 0. Okay, for critical points y dash equals to 0. Then for x into x minus 2 into x minus 1 is equals to 0. Okay, for not equals to 0, then x equals to 0 or x minus 2 equals to 0 or x minus 1 equals to 0. Then x equals to 0, 2 and 1. Okay, now number line minus infinity, 0, 1 and 2. Okay, then intervals, sign of f dash x and nature of function. Okay, now intervals क्या क्या हो गए बेटा. माइनस इंफिनिटी टू 0, then 0 to 1 and then 1 to 2, 1 to 2 and then 2 to infinity, 2 to infinity. Okay, नाउ साइन चेक करते हैं. देखो इस इंटरवल में, ओके, नाउ इस इंटरवल में हम क्या करेंगे, y डैश, देन x की जगह क्या पुट कर देंगे बेटा हम. x की जगह हम 0 और इंफिनिटी के बीच की कोई भी वैल्यू, दैट मींस -1 पुट कर देते हैं. ओके, देन -1 पुट करेंगे तो 4 into -1 into -1 -2 और into -1 -1. Okay, now this sign is minus, this also minus, and this minus, minus plus minus. It means sign of f dash x minus. नीचे क्या होगा, strictly decreasing. Okay, now अब 0 और 1 के बीच के लिए चेक कर, सॉरी इस इंटरवल के लिए चेक करते हैं. देन इस इंटरवल में क्या हो जाएगा बेटा, इस इंटरवल में आपको 0 और 1 के बीच का नंबर, देन 0 और 1 के बीच का नंबर 1/2 रख लेते हैं. देन y डैश इक्वल्स टू 4 into 1/2, 1/2 minus 2 and 1/2 minus 1. Okay, then positive, negative and negative, positive, that means plus, then strictly increasing. Okay, now 1 to 2 के लिए और y dash 1 और 2 के बीच का कोई नंबर, 1 और 2 के बीच का नंबर 1 and 1/2, it means 3/2. then 3/2 के लिए चेक कर लेते हैं. 4 into 3/2, 3/2 minus 2, 3/2 minus 1. That means positive, it means negative and positive, plus plus positive negative, it means ये sign negative, strictly decreasing. now 2 to infinity के लिए
मींस 2 और इंफिनिटी के बीच का कोई नंबर, देन 3 पे चेक कर लेते हैं। y डैश इक्वल्स टू 4 into 3, 3 minus 2 and 3 minus 1. Positive, positive, positive. It means positive. Okay. Then strictly increasing. Okay. Then y, for y is increasing. Then x belongs to, कहां कहां इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीज इसमें हो रहा है, इंक्रीज इसमें हो रहा है. दैट मीन्स y belongs to 0 to 1, union 2 to infinity. Okay, without पक्का. Now question number 9, prove that y equals to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of theta in closed interval 0 to pi by 2. ओके, आपको प्रूव करना है 0 टू पाई बाय 2 के बीच में ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्लूडेड 0 एंड पाई बाय 2. ओके, 0 भी इंक्लूड है और पाई बाय 2 भी इंक्लूड है. आपको ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है. ओके, नाउ डिफरेंशिएट. फर्स्टली डिफरेंशिएट, देन y डैश इक्वल्स टू क्वोशिएंट रूल बेटा है ना, देन d बाय dx, सॉरी d बाय d थीटा, 4 कांस्टेंट वैल्यू है, देन sin थीटा into second as it is, 2 plus cos theta as it is, minus 4 sin theta as it is into d by d theta, 2 plus cos theta whole over 2 plus cos theta whole square and थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, देन 1. ओके, without y dash. ओके, नाउ सिंप्लीफाई करते हैं. 4 साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे देन कॉस थीटा. ओके, और इनटू 2 प्लस कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा एंड 2 को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में 0 और कॉस को रिस्पेक्ट कॉस थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे देन माइनस साइन थीटा एंड होल ओवर 2 प्लस कॉस थीटा और इसका स्क्वायर एंड माइनस 1. ओके बेटा, नाउ सिंप्लीफाई करते हैं. 4 2 जा 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा एंड होल ओवर 2 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर and minus 1. Okay बेटा, now 8 cos theta plus 4 कॉमन लेंगे उसके बाद cos square theta plus sin square theta. क्या वैल्यू होती है cos square theta sin square theta की? 1. then 1 it means 4. okay, upon 2 plus cos theta square and minus LCM ले लेते हैं, then 2 plus cos थीटा होल स्क्वायर. ओके, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं देन 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर देन 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड माइनस 4 cos थीटा एंड होल ओवर 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर. 4 से 4 कैंसिल बेटा, 8 cos theta 4 cos theta, it means 4 cos theta minus cos square theta upon 2 plus cos theta square. ओके, अब आपको ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है. देन फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन y dash greater than equals to 0. ओके, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होगा? y dash is greater than equals to 0. इट मीन्स
4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा इसका होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ cos कॉमन आ रहा है बेटा, यहां से cos कॉमन ले लेते हैं, cos थीटा कॉमन, 4 माइनस cos थीटा एंड 2 प्लस cos थीटा इसका होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ अब देखो बेटा, cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में लाई करती है ना। cos थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है, मींस मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1। इट मींस देखो ये पॉजिटिव है ना, cos थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है, और 1 4 -1 इट मींस 3 मींस पॉजिटिव। ये स्क्वायर क्वांटिटी है, इट मींस ऑलवेज पॉजिटिव, देन ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये नंबर पॉजिटिव हो वो किस पे डिपेंड करता है, cos थीटा, ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ये पॉजिटिव क्वांटिटी, अब ये होल पॉजिटिव क्वांटिटी किस पे डिपेंड करेगी, इस पे डिपेंड करेगी, और ये क्वांटिटी मस्ट बी पॉजिटिव है ना, तभी तो ये होल क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी। अगर ये नेगेटिव आ गई तो इट मींस ये होल क्वांटिटी नेगेटिव हो गई, इट मींस लेस देन 0 हो गया ये तो, है ना। इट मींस दिस cos theta is greater than 0 or cos theta greater than 0, it means this, okay, it means theta belongs to 0 to pi by 2। और इसमें हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं क्योंकि cos theta इसमें भी पॉजिटिव होता है ना, देन हम इसको यूनियन कर सकते हैं, और यूनियन में 3 pi by 2 to 2 पाई। ओके, बट हमें इतना ही पूछा गया है तो हम इतना ही आंसर देंगे, कोई डाउट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to infinity। ओके, ओपन इंटरवल 0 to infinity। नाउ लेट f of x equals to log x differentiate, then f dash x equals to 1 by x। और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f dash x must be greater than equals to 0। okay, then f dash x 1 by x must be greater than equals to 0, but only क्योंकि अगर 0 के इक्वल आ गया इट मींस नॉट डिफाइंड, है ना, x की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई इट मींस नॉट डिफाइंड, इट मींस x इज ग्रेटर देन 0। ओके, x is greater than 0, then the function is, sorry, x belongs to 0 to infinity। कोई डाउट बेटा, पक्का कोई डाउट नहीं है। नाउ इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, आपको भी वो क्वेश्चन ढंग से सॉल्व करके देखने हैं। अगर कोई भी आपको समस्या आती है तो मुझसे कांटेक्ट करें। ओके बेटा, कोई डाउट। नाउ बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।